In this video lecture, I am going to explain the indexing of border diffraction pattern in order to determine the crystalline structure of a cubic system by using second manual method. After watching this video, student can able to determine the crystalline structure of a compound as well as lattice parameter by using second manual method, that is analytical method. In previous video, we have to discuss the first method, that is mathematical method, but in second manual indexing method, that is analytical method, this method is somewhat lengthy as compared to mathematical method. There are following steps of analytical method in order to determine the crystalline structure of a given compound and also the lattice parameter of a given compound. You identify the peaks from X or D given spectrum. Second step, you determine the sin square theta value. Third step, you have to identify the lowest common k value. You find a ratio by dividing the sin square theta value to lowest common k value for each and every peak. In next step, you select the appropriate pattern of h square, k square and l square value. After selecting that, you can able to identify the Bravais lattice. You follow this table in order to determine the Bravais lattice of a given system. As you know that if your answer of h square, k square and l square starts from 1 to onward, then it will be simple cubic system or primitive cubic system. If your answer will be start from 2, 4, 6, 8, then it should be Bravais lattice. Bravais lattice, that is body center cubic system. If your answer is a mixture of odd or even, then it will belong to face center cubic system. In this table, I explain this process by using some value. If your crystalline system, if your lattice parameter h square, k square and l square value will be 1, then simple cubic system, but not Bravais lattice body center cubic system, because body center cubic system value will be stalled from 2, 4, 6, 8. So 1 is not exist in this value, so it is not belong to body center cubic system value. 2 value will be body center cubic system value, and 3 value will be for simple cubic systems value, not for body center cubic system value. If you have to obtain such type of values in which you have even and odd numbers, then you can say that this system will belong to face center cubic system. Step, you can find the lattice parameter by using an appropriate formula. Going to explain the whole steps by using an example. In this is a spectrum of aluminium. In this case, the source of the X-ray having wavelength 1.50562 angstrom, that is used for the analysis of aluminium sample in order to determine the crystalline structure of the compound, and we get spectrum, border X or D spectrum. तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होगा, मेजर पीक्स आइडेंटिफाई करनी होंगी by marking 1, 2, 3, 4, 5, 6. So first one is heavy peak number 1 is maximum intensity, then second, third, fourth, fifth, sixth, 7 and so on. After identifying the peaks from the XRD spectrum,
यू आर फोकस ऑन 2 थीटा वैल्यू, तो आप इस केस में क्या करोगे, 2 थीटा वैल्यू ईच एंड एवरी पीक में फर्स्ट सेकंड स्टेप में आपने क्या करना होगा, मेंशन करना होगा। सो फर्स्ट वीक के लिए आपके पास 2 थीटा वैल्यू 38.43, सेकंड के लिए 44.67, थर्ड के लिए आपके पास 65.02 बाय यूजिंग प्रीवियस स्लाइड स्पेक्ट्रम, एंड फोर्थ के लिए आपके पास 78.13, फिफ्थ 82.33, सिक्स 98.93 and so on. Now you can find the sine square theta value. In order to calculate the lowest possible k value, for this purpose आपको करना ये होता है कि आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पर आपको एवरी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को डिवाइड करना होता है फर्स्ट वीक से, सेकंड वीक से, थर्ड वीक से, फोर्थ वीक से, फिफ्थ वीक से, 6, 7 एंड सो ऑन। आप इस तरह से इसलिए करते हो, इसको डिवाइड करते हो, सो यू कैन फाइंड अ कांस्टेंट मिनिमम वैल्यू ऑफ के दैट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द एच स्क्वायर, के स्क्वायर एंड एल स्क्वायर वैल्यू। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू डिटरमाइन करनी होगी, फिर आपको साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 डिटरमाइन करनी होगी, दैट्स विल बी इक्वल टू ऑलमोस्ट साइन स्क्वायर थीटा। फिर आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को 2 पे डिवाइड करना होगा, फिर आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को 3 पे डिवाइड करना होगा, 4 पे डिवाइड करना होगा, 5 पे डिवाइड करना होगा, 6 पे डिवाइड करना होगा, 7 एंड 8। इन दिस केस आई डोंट मेंशन 7 वैल्यू बिकॉज दीज आर नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट बिल्कुल नहीं थी, तो इसलिए इस वैल्यूज़ को मैंने ओमिट कर दिया। बट आप 7th की वैल्यू को भी आप क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा ओवर 7 भी फाइंड करेंगे, फिर 8 भी फाइंड करेंगे। जितनी भी आपके पास नंबर ऑफ़ पीक्स होंगी उन तमाम पीक्स को आपने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पे क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। जब आप डिवाइड करोगे तो आप अगले स्टेप में क्या करोगे, फाइंड करोगे लोएस्ट पॉसिबल के वैल्यू। So first in next step, first of all we find the sine square theta value. Theta value is equal to, for first peak 0.1083, second peak 0.1444, third 0.2888, fourth 0.3972, fifth 0.4333, 6.5776, 7.6859, 8.722। अगर आप साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 फाइंड करो तो इन तमाम साइन स्क्वायर थीटा को 1 पे डिवाइड करो तो आपके आंसर आपके पास क्या होगा, इक्वल टू दिस। तो सो वी डोंट फाइंड द साइन स्क्वायर थीटा बाय 1, वी ऑलवेज मूव फ्रॉम नेक्स्ट वीक। फर्स्ट वीक के लिए आप फाइंड नहीं करते क्योंकि आपका आंसर इक्वल होता है, आप नेक्स्ट वीक के लिए मूव करोगे। नेक्स्ट वीक में हमने क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू को डिवाइड करोगे 2 पे और गेट आंसर, एंड थर्ड में आपने नेक्स्ट स्टेप में फिर थर्ड वीक साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू को मीन के 0.1083 को आप 3 पे डिवाइड करोगे तमाम पीक्स की, और इसी तरह से 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे एंड 8 पे एंड सो ऑन। In this slide, I am divided the all sine square theta value by 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. 7 value I skip because it has no constant value, so I skip in this case. But you don't skip, आप फाइंड कर सकते हैं, आप स्किप भी कोई वैल्यू कर सकते हैं किसी भी पीक की, लेकिन आप ट्राई किया करें कि आप फुल फाइंड करें 2, 3, 4, 5, 6 and 8. Step. Now we identify the lowest possible k value. In order to determine the HKL value, keep in mind कि आपके पास lowest possible k value 3 peaks की अगर आपके पास constant आ रही हूँ तो then you can able to select this value, otherwise you have to move for next purpose के साइन स्क्वायर थीटा को आप 9 पे डिवाइड करोगे एंड सो ऑन। तो आप देखें साइन स्क्वायर थीटा 3 की वैल्यू भी आपके पास 1 वैल्यू 0.0361 है, फॉर 4.0361 है और फॉर 8.0361 है। तो इस स्पेक्ट्रम में, इस पूरे एक्सऑल्डी स्पेक्ट्रम में आपको 3 पॉसिबल पीक्स एक कांस्टेंट थीटा वैल्यू डिवाइड
थीटा वैल्यू प्रोवाइड कर रही हैं, दैट इज़ के वैल्यू, बाय डिवाइडिंग द साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू बाय टी। तो आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यूज़ आ रही हैं जिसको आप एक नेक्स्ट कांस्टेंट के इक्वल कर रहे हो, दैट इज़ के। तो आप इस कांस्टेंट वैल्यू को अगर इन तमाम साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू पे डिवाइड कर दो तो यू कैन एबल टू आइडेंटिफाई the value, able to identify and calculate the value of h square, k square and l square value। तो नेक्स्ट आपने इस तमाम के वैल्यूज़ को डिवाइड करना होगा 0.0183 पे, 0.1144 पे, 0.2888 पे, 0.3972 पे। तो आपके पास ये आंसर ऑब्टेन होगा। साइन स्क्वायर थीटा को के की वैल्यू पे डिवाइड करके आपने आंसर गेट कर लिया। इन दिस केस वी डोंट हैव टू convert the h square, k square, l square value into whole digit because k value is actually the value that is used to convert the sin square theta value, a constant that is used to convert the sin square theta value into whole digit। तो आपके पास होल डिजिट की एच के एल वैल्यू प्रोवाइड हो गई हैं। ये तमाम की तमाम वैल्यूज़ आपकी डेसिमल में नहीं है, इट इज़ होल डिजिट। तो आप नेक्स्ट स्टेप में इनको value, so h square, k square, l square value of the given peak, first peak is equal to 3, second is 4, third is 8, fourth is 12, fifth 12, 6, 16, 7, 19, 8, 20। अब आपने तमाम एच स्क्वायर, के स्क्वायर, एल स्क्वायर की वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने ब्रेविस लैटिस को डिटरमाइन करना होगा बाय यूजिंग टेबल। तो अगर आप देखें ब्रेविस लैटिस की वैल्यू तो इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ ऑड एंड इवन बिकॉज 3 इज़ ऑड, 4 इज़ इवन, 8 इज़ ऑड, 8 इज़ इवन, 11 इज़ ऑड, 12 इवन, 16 आंसर इवन, 9 इज़ ऑड, देन 20 इवन। तो इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ ऑड इवन। सो अकॉर्डिंग टू रूल, according to table, this crystalline system belong to face center cubic Bravais lattice। So we can determine the crystalline structure by indexing the second important method, that is analytical method, and you can also find the possible h square, k square, possible h square, k l value by using h square, k square, l square value। इस पर्पज़ के लिए आप क्या करोगे कि अगर आपके पास एच स्केयर, के स्केयर, एल स्केयर इज इक्वल टू 3 तो आप देखेंगे कि एच के एल आपके पास कितनी आएगी। अब 1 के स्केयर करें प्लस 1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर इज इक्वल टू 3 तो आपके पास एच के एल 1 की आएगी। इसी तरह से 4 की केस में आपके पास क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, आपके पास एच स्केयर, के स्केयर प्लस एल स्केयर इज इक्वल टू 4, ये आपके पास आंसर ऑब्टेन हुआ। तो अब आप इसकी वैल्यू डिजिट पुट करें, 2 का स्केयर लें प्लस 0 का स्केयर प्लस एल की के की वैल्यू को भी 0 पुट करो, एल की वैल्यू को भी 0 पुट करो, तो फिर 2 का स्केयर प्लस 0 का स्केयर प्लस 0 का स्केयर दैट्स विल बी इक्वल टू 4। तो आप क्या कर सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी है कि आप एच के एक्सिस पे 2 की वैल्यू पुट कर दो प्लेन की तो आपके पास 2 0 0 की होगी, या फिर आप के की वैल्यू पुट कर दो 2 तो फिर आप 0 0 0 2 0 की होगी, या फिर आपके पास 0 0 2 की होगी। इस तरह से आपसे पॉसिबल एच के एल वैल्यू डिटरमाइन कर लेनी है और ईच एंड एवरी पीक पे आपने क्या करनी है, असाइन कर लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, 7 स्टेप में लैटिस पैरामीटर को कैलकुलेट करना होगा। बाय यूज कैलकुलेटिंग द लैटिस पैरामीटर द फार्मूला इज इक्वल टू given as and you have to find the constant a value of each and every peak। आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 की पीक को आप क्या करोगे, एट अ टाइम कैलकुलेट कर लोगे, क्योंकि आपने डिवाइड करना होगा के वैल्यू से, तो आपको ईच एंड एवरी लैटिस पैरामीटर की वैल्यू को फाइंड करना नहीं होगा। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ एनालिटिकल मेथड। इन लास्ट मेथड आपने क्या किया था कि ईच एंड एवरी पीक की के वैल्यू को, ए वैल्यू को डिटरमाइन किया था और उसके बाद आपने उनकी एवरेज ली थी। बट इन दिस केस आपको देयर इज़ नो नीड टू टेक ईच टू कैलकुलेट ईच एंड एवरी पीक लैटिस कांस्टेंट वैल्यू। आप फार्मूला यूज़ करते हुए जस्ट आपने के की वैल्यू को पुट करना होता है और फार्मूला यूज़ करना होता है और ईच एंड एवरी पीक की वैल्यू को क्या कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो एक कांस्टेंट। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर, दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर द इंडेक्सिंग ऑफ XOLD spectrum in order to determine manual indexing
process.